Hello everyone, welcome back to my channel which is Study with PK Q&A में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट 1 जो पॉलिटी का है, विजन IAS का। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस का होता है तो एक ही दिन अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे डेली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन विदाउट एनी लेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरिया गोल्ड। ओके, so first statement is it is a sulfur coated urea. Yes, it's true. And sulfur coating ensures fast release of nitrogen. No, it's not a fast release. सल्फर कोटिंग किया ही इसलिए जाता है ताकि वो ग्रेजुअली रिलीज हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा दस हेल्पिंग द प्लांट्स टू स्टे ग्रीनर फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ओके, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज करेक्ट। ओके, बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Financial Intelligence Unit of India. Okay, there is asking correct statement. So first statement is it is a central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information relating to suspect financial transaction. Yes, it's a correct statement. Next is they report directly to the Economic Intelligence Council is headed by the Finance Minister. Yes, it's also correct statement. Okay, so answer for this question is option number C, which is both 1 and 2 are correct. And Financial Intelligence Unit of India set up by Government of India in 18 November 2004 में। ओके, एंड ये इशूड क्या करता है? शोकेस द नोटिस टू 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर। ओके, एंड दिस वाज ऑपरेटिंग इलीगली विदाउट कंप्लेनिंग with provision of the Preventing of Money Laundering Act 2002. Okay, so next question is in order to ensure the independent and impartial functioning of the Election Commission of India, which of the following provision were incorporated in the Constitution of India? Okay, first statement is the Election Commission has debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. No, it's not correct statement because the Constitution has not debarred. Okay, not debarred the retiring election commissioners from any further appointment by the government. So statement was 1 is incorrect because यहाँ पे not होगा. And next statement is the chief election commissioner can be removed in the same manner and the judge the same ground as the judge of the Supreme Court. Yes, it's a correct statement. Next statement is the Constitution has specified the term of the all the member of Election Commission of India. So no, it's not correct. So answer for this question is option A, only 2 is correct. And let's talk about something Election Commission of India. ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। एंड अगर हम इसकी बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। और ये 324 जो आर्टिकल है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, किसका इलेक्शन करवाता है? तो वो है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारा का इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
के द्वारा किया जाता है अंडर आर्टिकल 324. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इज पब्लिश्ड बाय. ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो वो किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नो, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है. ओके, और इंडिया रिमेन्स, according to this report, India remains the fastest growing large country in the world. Okay, next question is which of the following happened earlier in the process of state reorganization after independence? Okay, सबसे earlier कौन सा हुआ था? तो वो था एसके धार कमेटी, क्योंकि ये हुआ था जून 1948 में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, ये हुआ था 1953 में, वो भी अक्टूबर में. एंड ये किस आंध्रा का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? तो इसमें तेलुगु मद्रास में ये था, मद्रास प्रेसिडेंसी में था पहले आंध्र प्रदेश, ठीक है, बट तेलुगु स्पीकिंग के लिए इसको अलग करके अक्टूबर 1953 में अलग किया गया था, क्योंकि और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट फॉर्म होने वाला पहला स्टेट है. और ये क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम एक पोलोरे राम मुल्लू करके एक नेता थे जिनकी डेथ हो गई थी हंगर स्ट्राइक के कारण. वो भी 56 डेज हंगर स्ट्राइक किया था इन्होंने, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी. उसके बाद प्रेशर में आके गवर्नमेंट को आंध्र प्रदेश फॉर्म करना पड़ा था. बट इसके बाद जब आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन हो गया था, उसके बाद एक फजल अली कमीशन आया था जिसको इसको रिकन्सिडर करके चेक कर रहा था. ओके, सो ये हो गया. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एसके धार कमेटी. देन अगर हम बात करें जेबीपी कमेटी, तो वो आया था दिसंबर 1948 में. और नेक्स्ट था जो इनैक्टमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953, वो भी 1953 में आया था, तो वो भी दिसंबर में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, सबसे पहले वही हुआ था, ऑप्शन ए, इसके धार कमेटी. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग. ओके, तो how many of the above is are ensured by the article 14 of the Indian Constitution? First option are absence of special privileges for any person. Is it true? Yes, it's a true statement. And reasonable classification of persons, yes. Equality of treatment under equal circumstances, ये भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? all options are correct. ऑप्शन सी. ओके, सो अगर हम आर्टिकल 14 के बारे में कुछ देखते हैं तो उसमें क्या होता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू पर्सन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ओके, और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था? तो वो ब्रिटेन से. एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बात करें तो यूएसए से. ओके, और ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, पहले आया हुआ एग्ज़ाम में. ओके, सो याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग करके भी पूछ देता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किससे लिया गया है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो आप इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ को ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिफोर यहाँ से बी को पकड़िए और ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन से लिया गया. और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ तो यूएसए से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया has the right of an audience in all courts of India. Is it correct? Yes, it's correct statement. Next is he is debarred from privileges private legal practice. No, it's not, because he is not debarred from private legal practice. Okay, so statement second is incorrect. Has the right to speak and vote in both houses of the parliament? No, because he has the right to speak and take part
take part on proceeding इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बट वोट करने का अधिकार नहीं है. तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. enjoy all privileges and immunities that are available to the member of parliament. Yes, it's also correct. So answer for this question is 1 and 4 is correct statement because there is asking about correct statement, and 3 and 4, 2 and 3 statement are incorrect. Or he is not debarred from private legal practices because he is not full-time counsel of the government and he does not fall on the category of government services. इसी की वजह से उसको डिवाइड करने का लीगल ये नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. First statement, President can declare a national emergency on the ground of internal war disturbance. No, President cannot declare national emergency on the ground of internal disturbance. So statement 1 is incorrect. The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Yes, it's correct statement. The proclamation of national emergency must be approved by both houses of the parliament within month of the 2 month of the from the date of issue. No, it's not a 2 month, it's a 1 month. Okay, so statement third is also correct. Lok Sabha has no control over the revocation of national emergency. Statement 4 is also incorrect क्योंकि ये लोक सभा हैज़ कंट्रोल ओवर द रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी. तो यहाँ पे नो कर दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an example of fundamental right? Let's see. First statement is a farmer sell his farm and start a business. Yes, it's a correct statement under fundamental right. Article 19. Okay, comes under. A person come from Gujarat, move to Maharashtra and settle here is also a fundamental right. A person inherits property from his parents. No, it's not a fundamental right. So answer for this question is C, which is not a fundamental right, and there is asking about not a correct statement. Okay, next statement is a person refuse to believe in any religion. ये भी हमारा fundamental right है, अगर हम चाहे तो नहीं कर सकते. Okay, so next let's come to the next question is consider following pairs constitutional provision and adopted from. Okay, first is fundamental right. फ्रांस फंडामेंटल राइट्स कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? फ्रांस से? नो, ये फ्रांस से नहीं किया गया है, ये यूएसए से किया गया है. एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स फ्रॉम, ये किया गया है हमारा लिया गया है आयरलैंड से ना. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेटमेंट रेसिडुअल पावर विथ सेंटर कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से, ये भी सही है. एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन से लिया गया. ओके, और अगर हम इसमें और आगे डिटेल में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या क्या लिया गया है? तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है. और अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, ये इतना सारा लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. एंड अगर हम यूएसए से बात करते हैं तो वहाँ से क्या क्या लिया गया? तो यूएसए से लिया गया फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा. एंड अगर हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लिए हैं? तो वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए. और इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो
Federation with a strong center, vesting of residue power of the center, appointment of the state governors by the center, advisory jurisdiction of the Supreme Court. ये सारे कैनेडियन गवर्नमेंट से लिया गया. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया है. ओके, कॉन्करेंट लिस्ट एंड freedom of trade, commerce and intercourse, joint sitting of the two houses of the parliament. ये भी सारे हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. और अगर हम बात करते हैं जर्मनी से तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी. ओके. और अगर हम बात करते हैं रशिया से, तो रशिया से हमने क्या लिया है, तो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसमें हम देखते हैं आइडिया ऑफ जस्टिस विच इज़ कॉल्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल. ओके. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे हम क्या लिए हैं, उससे हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से Republic and ideals of the liberty, fraternity and equality. Okay, in the preamble. So ये, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच इज consider the following statements with respect to the State Human Rights Commission. First statement is, the State Human Rights Commission has all the power of a civil court and its proceeding have a judicial character. Yes, it's a correct statement. Next is, State Human Rights Commission can inquire into the violation of human rights with respect to subject mentioned in the state list only. No, it's not about only state list, it's a concurrent list also. और ये किस में है, तो शेड्यूल 7 में है. ठीक है, जिसमें डिवीज़न ऑफ पावर्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में सारे रूल्स और लॉज बनाएगा सेंटर, एंड स्टेट लिस्ट में स्टेट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट. ओके, सो ये हो जाएगा. तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. एंड द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. यस, ये गलत है क्योंकि ये एलिजिबल होते हैं, आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ओके, so statement 3 is also incorrect. So answer for this question is option A, which is only one is correct statement. Okay. एंड और अगर इसका टर्म का हम बात करें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, तो वो टर्म होता है 3 इयर्स का, एंड 3 इयर्स और 70 इयर्स, जो भी पहले हो जाए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with reference to the theory of basic structure of the constitution. First statement is, it limits the authority of the parliament to amend the constitution. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is, the judiciary has the financial authority to decline if an amendment violates the basic structure of the constitution. It's also correct statement. Okay, next statement is, it applies all the amendments since the coming into in force of the constitution. No, it's not a correct statement, because it applies to the all amendments. वोमेन राव केस 1981 का था, 1981 में, जो कि इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आफ्टर द 24th of April 1973. उस टाइम क्या हुआ था, तो उस टाइम केशवानंद भारती केस आया था, केबीसी केस भी जिसको बोल सकते हैं, 1973 में. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट. So option B is the correct answer for this question. Okay. Next question is, who among the following determines the qualification and the manner of selection of member of finance commission.
तो वो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट. ओके, पार्लियामेंट, which is option B is the correct answer for this question. Next question is, fundamental duties were added to the Indian Constitution on the recommendation of the following commission, which is स्वर्ण सिंह कमेटी. ओके, और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे है, पार्ट 4 में है. ओके, पार्ट 4A, विच इज़ आर्टिकल 51A, जिसमें 11 आर्टिकल्स हैं. ठीक है, बट ओरिजिनली वहाँ पे 10 था, एक जो 11th वाला है वो ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस में ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे ए है, तो इससे यही पता चलता है कोई भी पार्ट में या आर्टिकल में कैपिटल ए में कुछ कोई भी लेटर लिखा है, इट मीन्स कि वो अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड किया गया था, तो वो किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज़ स्वर्ण सिंह कमेटी. वही रिकमेंड किए थे फंडामेंटल ड्यूटी को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. फर्स्ट इज, अ बिल अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजंस of the constitution should be ratified by the legislature of half of the state by the simple majority. Yes, it's correct. Next is, abolition or creation of legislative council in state requires a special majority of the parliament. No, it's not a special majority, it's a simple majority. Okay, so statement second is incorrect. नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शॉर्ट सेलिंग. ओके, इट इन्वॉल्व सेलिंग स्टॉक नॉट ओन्ड एट टाइम ऑफ at the time or of trade. SEBI permits short selling both retail and institutional investor. Yes, both are correct statements. So answer for this question is option C is the correct statement. Let's come to the next question, which is, consider the following statements regarding the amendment and procedure of Indian Constitution. Okay, first statement is, a bill seeking to amend the constitution can be initiated in the state legislature. Is it true? No, it's a bill seeking to amend the constitution either house of the parliament can be initiated in the either house of the parliament, दोनों में. Okay, so statement first is incorrect. Next is, a private member can initiate a constitutional amendment. Yes, it's correct. Each house of the parliament must pass the constitutional amendment bill separately. Yes, it's also correct. So answer for this question is B. Okay, option B is the correct answer. Let's come to the next question. With reference to the direct to mobile technology, consider the following statements. First statement is, it does not require connectivity to stream TV connect directly to the mobile phone. Yes, it's correct. And it is compatible with all types of mobile network generation, including 2G and 3G. No, it's not correct. And if you are talking about D2M, broadcasting technology capable of transmitting multimedia content to consumer smartphone with और विदाउट रिक्वायरिंग इंटरनेट. ओके, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये पब्लिश किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, ताकि D2M ब्रॉडकास्ट 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोड मैप फॉर इंडिया. ओके, और इसी में एक ये भी है ATSC, इट मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड टेलीविज़न सिस्टम कमेटी. ओके, जिसका 3.0 आया है अभी, न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन. और ये जो है वो तीनों में काम करता है. ओके, किस में तो हो जाएगा टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट एंड केबल नेटवर्क. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट 1833. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, it deprived the legislative power of the governor
of Bombay and Madras. Yes, it's correct statement. Next is it ended both the commercial and administrative activities of the East India Company. It's a incorrect statement. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बिकॉज ये इनकरेक्ट क्यों है इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकॉज बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो यहाँ से हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट भी स्टार्ट हो गया था ओके किससे तो चार्टर एक्ट 1833 से स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव तो ये चार्टर एक्ट 1833 के टाइम नहीं हुआ था ये चार्टर एक्ट 1853 के टाइम हुआ था ओके तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज करेक्ट विच इज ऑप्शन ए ओके एंड अगर चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करेंगे तो उसमें उसी टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था जो कि थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था जो कि थे कौन विलियम बेंटिक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Consider the following statements regarding the acquisition of citizenship in India. Okay. First is currently the following statements regarding the acquisition of citizenship in India. First is currently a person born outside India automatically become an Indian citizen by descent if one of the parents of an Indian citizen. No, it's not correct. A person applying for citizenship for naturalization should have adequate knowledge of an language of the spoken नहीं ये स्पोकन इन इंडिया नहीं होगा लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए बट उसका जो लिस्टेड है अंडर शेड्यूल 8 of the constitution okay so option answer for this question is neither one or neither two option D is the correct answer for this question next question is the power to satisfy that the people of a foreign territory shall be the citizen of India when a foreign territory become part of India is vested in ये कब होगा तो ये होगा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the Pitt's India Act 1784. First statement is it allows the court of director of East India Company to manage the political affair of India. No, it's not correct because it allows the court of director to manage the commercial affair but created a new body called बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर ओके और ये डुअल गवर्नमेंट का भी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो गया था एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड ब्रिटिश professions in India. It is correct statement. So answer for this question is option B is the correct statement. Correct answer okay next question is according to the Indian Constitution which among the following categories of person would be eligible to become a citizen of India on 26th of January 1950 okay the first statement is a person who is resident in India for 5 years immediately before independence. No, it's not correct. Next is a person who migrated to Pakistan from India after 1st March 1947 but later returned to India for resettlement. Yes, it's a correct statement. So option B is the correct answer for this question. Next question is consider the following statements with reference to 30-meter telescope project. Okay, पहला statement है
30-meter telescope project regarding. It is a joint venture including India, Canada, China, Japan and US. Yes, it's correct statement. Next, it will provide images with resolution more than 12 times sharper than the Hubble Space Telescope. Yes, it's also correct. Next is it being constructed in Svalbard in the Arctic region. No, it's not correct. ये कहाँ पे बना है? तो हवाई आइलैंड मोनाकिया में बना हुआ है. ठीक है. कहाँ पे? मोनाकिया. ओके. सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और ये एन इंडियन डेलीगेशन अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडियन डेलीगेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली विजिटेड हेयर. यहाँ पे विजिट किए थे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements. Statement first is the parliamentary system is based on the doctrine of separation of power between the legislature and executive. No, it's a doctrine of separation of powers between legislature and ये हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ना कि पार्लियामेंट्री. और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. Okay, so first statement is incorrect. Next, second statement, the Indian Parliament is not a sovereign body like the British Parliament. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct answer. Okay. Next question is, which of the following directive principle is based on the Gandhian ideology? Okay. First statement is, first option is to promote cottage industry on an individual or cooperative basis in rural areas. Yes, it's a Gandhian principle under article 43. ठीक है. And next is to organize एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न स्पेसिफिक लाइन्स. ये हमारा हो जाएगा लिबरलाइजेशन आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी. ओके. तो स्टेटमेंट सेकेंड नहीं होगा. टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. ये हमारा आ जाएगा आर्टिकल 47 में, जो कि एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है. ओके. और ये कौन सा अंडर आर्टिकल आ जाएगा? 48. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. ओके. Next question is, consider the following categories. How many of the above countries shared the boundary of the Persian Gulf? बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सारे शेयर करते हैं बाउंड्री पर्शियन गल्फ के साथ. ओके. और अगर हम पर्शियन गल्फ को वर्ल्ड के मैप में देखें तो कहाँ पे हो जाएगा? सपोज दैट ये हमारा अफ्रीका है. ठीक है, अफ्रीका है. तो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्शियन गल्फ. ये इंडिया अच्छे से नहीं बन पा रहा है बट रफली आप समझ सकते हैं. यहाँ पे पर्शियन गल्फ, देन इधर हो जाएगा इसका गल्फ ऑफ ओमान. ठीक है. एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स. ओके. सो let's come to answer for this question is option number D, which is all of the are correct, क्योंकि सारे पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल human right commission are appointed by the president on the recommendation of the selection committee. Which of the following is our member of selection committee? Okay. so पहला स्टेटमेंट है, पहला है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. नो. लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा. करेक्ट. होम मिनिस्टर. यस. प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड होते हैं. ठीक है. और इसमें और कौन कौन से होते हैं? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक
स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, बॉडी है जो कि 1993 में बना था। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर। एंड अगर ये मल्टी मेंबर बॉडी है इन द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में ये करेंगे। एंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बस गलत है, जो कि राज्य चेयरमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज recently Prime Minister of PM of India visited Kalaram Mandir in Nasik. Kalaram Mandir in Nasik, Maharashtra. Consider the following statement. Which statement is correct? Okay. First statement is this temple is located on the bank of Godavari. Yes, it's a correct statement. This temple is dedicated to Lord Krishna and Krishna's brother Balram. No, it's not correct statement because ये लॉर्ड रामा के लिए फेमस है। ओके, और लॉर्ड रामा के काला के नाम से इनका नाम भी, ब्लैक जो है उसको काला के नाम से ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज द करेक्ट, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू लोकपाल। Okay, Lokpal consists of a chairman with maximum number of 8 member. Correct. 50% of the member of Lokpal shall be judicial member. Yes, it's also correct. The Prime Minister and member of the Union Cabinet Minister are excluded from the judicial of the Lok Sabha. No, it's not excluded, it's included. So option statement 3 is incorrect. So answer for this question is option 2 B. Only two options are correct, which is 1 and 2. Okay, और अगर हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में, तो लोकपाल एंड लोकायुक्त 2003 में आया था। और लोकपाल काम करता है सेंटर में, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लोकायुक्त, ये काम करता है स्टेट के अंदर। ठीक है, और ये क्या काम, प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म विजिलेंस एंड एंटी करप्शन रोड मैप फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the expressing union of a state under the article 1. Okay, statement 1 is all the state and union territory are part of express union of state. No, it's not correct. A union territory enjoy a similar relationship state with the union government. No, it's not correct. So answer for this question is option number D, which is neither 1 neither 2 is the correct option. Next question is consider the following statements considered as the main reason for the Indian Constitution to be a living document. रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहने के लिए? ओके, फर्स्ट इज इट इज़ रिजिड इन नेचर एंड डिफिकल्ट टू चेंज. नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. इट अडॉप्ट सेवरल प्रोविजंस ऑफ लीडिंग डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट, इट कैन बी अमेंड एंड इवॉल्व विथ चेंजिंग सिचुएशन. येस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many of the following could come under the reasonable restriction provided by the Indian Constitution on exercise freedom of speech and expression under Article 19 Clause 2? और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 किसके अंदर आता है? तो वो पार्ट 3 के अंदर आता है, जो कि फंडामेंटल राइट के है. ठीक है, पार्ट 3 है हमारा. पार्ट 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स. और कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो वो है आर्टिकल 12 to 35. ओके, सो देखते हैं पहला स्टेटमेंट, विच इज़ लेक इज क्लासिफाइड लीकिंग classified material by the intelligence officer. Yes, it's a correct statement.
गिविंग स्पीच टू टेक अप आर्म्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड स्पीच विथ कैन हैम्पर स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन लोकसभा, ये इनकरेक्ट है. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी करेक्ट है. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड ओनली 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द amendment of the Indian Constitution. Okay, first is a bill seeking amendment of the Constitution does not require the prior permission of the President. It is true. Yes, it's true. All constitution amendment bill must be ratified by the half of the state. No, it's not true. If the bill seek to amend the federal provision of the constitution, it must also be ratified by the legislature of the at least half of the state by simple majority, that is the majority of house present and voting. Okay, so answer for this question is only one is the correct. Next question is consider the following statements with reference to Controller and Auditor General of India, which is CAG. CAG is head of the Indian Audit and Account Department. Is it true? Yes, it's a correct statement which comes under 148 article. Okay. Next statement is removal of CAG does not require approval of parliament. Yes, it's correct, क्योंकि ये कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं और रेजिग्नेशन किसको देंगे तो वो प्रेसिडेंट कर देंगे और प्रेसिडेंट इन्हें कभी भी रिमूव कर सकता है ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, so statement second is incorrect. Next statement is the president prescribe the duties and power of the CAG in relation to the account of the union of the state. Yes, no, it's not a president, it's parliament. Okay, parliament prescribe the duties and power of the CAG in relation to account the union of the state. So answer for this question is only one is the correct. And if we are talking about CAG, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed by that the special majority, either on the ground of proven misbehavior or incapacity also. Okay, next question is consider the following statements. First statement is the Constitution of India envisages a dual polity but single citizenship, unlike the US, where there is a provision of dual citizenships. Yes, first statement is correct. Next is while all citizens of India, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights of citizenship. In the US, discrimination can be based on the citizen. Yes, it's also correct. So answer for this question is both. Option C is the correct, which is both 1 and 2 is correct. Next is consider the following statements regarding the Government of India Act 1919. Okay, so first statement is it introduced bicameralism in the Central Legislative Council. Yes, it's correct. Next is it provides separate electorate for Anglo-Indian and European. Is also correct. It create a new office of the High Commissioner for India in London. Is also correct. So answer for this question is option number C, which is all of the three are correct statement. Next statement is which of the following statement best describe totalization agreement which was recently in news. Okay, टोटलाइजेशन अग्रीमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि अभी न्यूज़ में भी है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ एन अग्रीमेंट थ्रू विच टू कंट्रीज प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट access to each other through various measures like low to zero tariff. No, it's not correct. Next statement is it is an agreement between two countries that eliminates dual social security deductions between two countries. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B,
रिसेंटली 14th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया एंड यूएस, किसका किसका, इंडिया एंड यूएसए का, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज it determines the relationship among the citizens and also between citizens and the government. Okay, so first statement is correct. Next statement is it specifies who has the power to make who has the power to make decision in a society. Also second statement is correct, so answer for this question is both is correct, which is option C. Okay, next question is consider the following statements with respect to the एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ओके, यहाँ पे इंडिया नहीं है, स्टेट है। ओके, सो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एडवोकेट जनरल मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड a judge of the high court. Yes, it's correct statement. Next is the remuneration and condition of service are determined by the legislative assembly of the concerned state. No, it's not in the legislative assembly, it's by the governor. Okay, so statement second is incorrect. He she hold office at the pleasure of the governor. Yes, it's also correct, so answer for this question is option B, which is only 2 is correct statement. Okay, next question is consider the following statements regarding the Constituent Assembly of India. First statement, the idea of the Constituent Assembly for India was put forward for the first time by the M.N. Rao in 1934, and so statement first is correct. Next statement is it was formed under the scheme formulated by Wavell's plan in 1945. No, it's not correct because ये Wavell's plan नहीं था, ये था कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था. Okay, so statement second is incorrect. Next is its members were elected indirectly by the Central Legislative Council. No, it's also incorrect statement because its members were elected indirectly by the Provincial Legislative Assembly. किससे, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से, ना कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वन इज द correct statement. Okay, which is option A. Next question is which of the following is essential feature of democracy. तो वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये फीचर तो है बट इसेंशियल नहीं है. और यहाँ पे पूछा इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या हो जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. बाकी इंडियन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे फीचर्स है डेमोक्रेसी के. और इसेंशियल में आ जाएगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इसमें कमिटी है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है. ठीक है, इसमें ये देखना है कि कौन सा चेयर किया था वो सही है या गलत है. पहला है कि स्टेट्स कमिटी चेयर किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज रूल प्रोसीड्यूर कमेटी, ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था, नहीं, ये भी किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, एंड स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन सी. और अगर हम मेजर कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं, पहला यूनियन पावर कमेटी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यूनियन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो कि सरदार पटेल जी के द्वारा किया गया था, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि चेयर किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा. ओके, एंड अगर एक और था एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये किसके द्वारा किया गया था, तो सरदार पटेल के द्वारा. ओके,
सो नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी, ये किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेट कमिटी तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसमें 5 सब कमिटीज़ भी है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी जो कि JB कृपलानी के द्वारा के, माइनॉरिटी सब कमेटी SC मुखर्जी एंड ऑल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया कैन acquire a foreign territory or it can cede a part of its territory in favor of a foreign state, स्टेटमेंट 85 का विच इज़ करेक्ट। एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज सॉवरेन in preamble of the Indian Constitution means there is no authority above India and is free to conduct its affair। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड statement second are the correct explanation of the statement 1. So option A is the correct answer for this question. Next question is, consider the following statements. Federal public service, दूसरा है डाकी at the center, establishment of Reserve Bank of India, All India Federation. How many of the above are provided इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सारा आ जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस एंड डाकी एट द सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर फॉलोइंग are not fundamental duties under part 4 of the 4A of the Constitution। ओके, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और किस अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा, तो करेक्ट स्टेटमेंट। टू इंश्योर टी रेनॉन्स प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारा। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, क्या ये है? जी हाँ, ये भी हमारा, नहीं ये नहीं है क्योंकि ये आ जाता है DPSP के अंदर। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी DPSP में है। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए विच इज ओनली 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ग्रीन फ्यूल अलायंस इन इंडिया। ओके, ग्रीन फ्यूल अलायंस इज अ सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर एंड advanced their joint global goal towards the carbon neutrality। ओके, और ये जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन, इन पहला स्टेटमेंट है जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया UAE लॉन्च, नहीं ये नहीं है, जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन ये किया गया है नीदरलैंड, सॉरी डेनमार्क। ओके, डेनमार्क। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, one of its primary object is reducing independence in the crude oil in the West Asian country, ये भी गलत है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइमरली तो कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, ग्लोबल टुवर्ड्स जॉइंट एडवांसमेंट टुवर्ड्स ग्लोबल गोल कार्बन न्यूट्रलिटी। ओके, और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं, एक और इनिशिएटिव है ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ओके, जो कि 2020 में लाया गया था इंडिया और डेनमार्क के द्वारा ही, और वो क्यों था? तो प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया बाय इनकरेजिंग कोलैबोरेशन विथ बोथ कंट्रीज बिजनेस ग्रोथ इनिशिएटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइदर 1 नाइदर 2, कोई सा भी सही नहीं है क्योंकि दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है
regarding the Indian Independence Act 1947. So first statement is it established the office of Secretary of State of India and transferred its function of the governor to the Governor General of India. No, it's not the correct statement because it abolished the office of the Secretary of the State in India and transferred its power, its function to the, ये गवर्नर जनरल नहीं होगा, टू दी कॉमनवेल्थ अफेयर को ट्रांसफ़र किया जाता है. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन सा है? बी, सी एंड डी करेक्ट है. तो देखते हैं इसमें क्या है. इट empowered the constituent assembly to do ordinary legislation till the new constitution was drafted and enforced. Correct statement. And it abolished the office of vice viceroy and provided a governor general who was to be appointed by the British king. Yes, it granted freedom to the Indian princely states either to join or dominion of India और डोमिनियन ऑफ द पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ये भी सही है. तो आंसर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली. It was set up under the which of the following Indian Constitution article, which is called Article 280. Okay. Next question is consider the following statements. First statement is the Election Commission of India is responsible for holding election to the Panchayat and Municipality. No, it's not correct क्योंकि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है. ओके, एंड सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट सेकंड इज Article 324 of the Indian Constitution provides that the power of superintendence of election to the Election Commission of India. Yes, it's correct statement. So answer for this question is option number D, which is incorrect. First statement and second statement is correct. So let's come to the next question. Recently, restructuring of coal. Sorry. Next question is consider the following benefits. More, how many of the above can considered as benefits of democracy? First is more accountable for the government. Yes, it's correct. Improved quality of decision making. ये भी सही है. Resolve conflict in a better way than the other. ये भी सही है. The answer for this question is all of the above are correct, which is option C. Okay. Next question is in the context of Indian polity, Union Public Service Commission is consulted on which of the following matters. Okay, पहला statement है regarding UPSC. First, while making reservation in favor of a backward class of citizen. No, it's not correct. Selection of chairman of tribunal. नहीं, ये दोनों नहीं होगा because kept इसमें यूपीएससी के ये से केप्ट आउटसाइड द फंक्शनल जुरिस्डिक्शन ऑफ यूपीएससी. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज. यस, इट्स करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ओनली 3. एंड अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो ये हमारा आता है पार्ट 14 में, जो कि अंडर आर्टिकल आता है 315 टू 323 के बीच में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द रिक्रूटिंग ऑफ कोल कंट्रोलर. इसके बारे में बात हो रहा है. तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसिडरिंग द फंक्शंस ऑफ द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन. पहला स्टेटमेंट है और यहाँ पूछा क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू एक्ट
as the appellate authority in case of dispute between consumer and owner arising out of declaration of grade and size of the coal. It's correct statement. Next is to regulate disposal of stock of coal or be expected output of coal in the colliery. ये भी सही है. Next is to grant opening reopening permission of coal mine seam or a section of seam or to subdivide a mine. ये भी सही है. Submission of monthly coal data to different ministries of central and state government, national and international organization. It's also correct. So answer for this question is all of this statement is correct. Option number D. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. Children of foreign diplomats posted in India. इसमें क्या पूछा? हाउ मनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन गेट सिटीजनशिप बाय बर्थ ऑफ इंडिया? चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया इज नो, इट्स नॉट करेक्ट. एनिमी अलायंस वो भी नहीं. अ चिल्ड्रन इज इलीगल माइंड यो भी नहीं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो कोई सा भी सही स्टेटमेंट नहीं और वहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था. लेट्स टॉक अबाउट IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि सेलिब्रेट किया था अभी 150 ईयर ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट. इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर दिस स्टेटमेंट कौन सा सही है? ओके, सो पहला है इट इज़ अ नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मॉनिटरिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी इन इंडिया. ये नोडल एजेंसी नहीं है. ये क्या है? तो ये है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी. तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. करेक्ट. इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ये भी करेक्ट. तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, स्टेटमेंट 2. और अगर हम IMD के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो वो है IMD इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो वो हुआ था 1875 में. ओके, 75 में. एंड ये अभी 150 ईयर कंप्लीट किया है. सो और इसका हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली था. एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स थे. ठीक है, जिसमें कि एक इंडिया में भी था. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसी के अभी उपलक्ष्य में, क्योंकि 1.5 साल इसका कंप्लीट हुआ है, तो इसी के ये में प्राइम मिनिस्टर जी लॉन्च किए हैं मिशन मौसम. ओके, जो इन्हांस करेगा इंडियाज़ कैपेसिटी इन वेदर एंड क्लाइमेटिक साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं IMD का, तो वो सिर्फ इंडियन ओशन में काम नहीं करता, और भी इंडियन ओशन के साथ मलक्का स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ में भी ये सारे जगह पे अपना रिपोर्ट ये देता है. इसका ऑब्जर्व क्या करता है? तो वो वेदर एंड फोरकास्ट ऑफ सिस्मोलॉजी. एंड इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट बहुत तरीके से है. पहला बेनिफिट में अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर वेदर का फोरकास्ट पहले से किया जाएगा तो एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगा. एंड नेक्स्ट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट. अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होगा तो भी बहुत सारे हादसे होने से बच सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी होने वाला रहेगा और पहले से हमें पता चल जाएगा, लाइक साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, तो हम कुछ हद तक उससे सेव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मल्टीपल सेक्टर. मल्टीपल सेक्टर में हो जाएगा बहुत सारी चीज़, जिसमें कि जैसे डिफेंस, एविएशन, वाटर रिसोर्सेज, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड हेल्थ केयर सेक्टर. ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्या था? तो ओनली 2, विच इज़ ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the financial emergency, consider the following statements. First statement is regarding financial emergency. First statement is once approved by the parliament, the financial emergency continues identified till it is revoked. First statement is correct. Okay, next statement is
Dissatisfaction of the president in declaring financial emergency is not questionable in any court. ये पहले था, ठीक है, जो कि डिलीट कर दिया गया है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1968 में आया था, ओके, सॉरी 78 में। तो ये हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिजोल्यूशन टू रिवोक फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द लोकसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी। नहीं, ये डजंट रिक्वायर, ओके, सिंपल मेजोरिटी। और ये किसके द्वारा रिवोक किया जा सकता है? तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा एनी टाइम, कभी भी, ठीक है, जब लगे कि नहीं करना चाहिए, ओके। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, sorry, incorrect. And if we are talking about statement 4, no financial emergency has been declared so far. अभी तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया है इंडिया में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, विच इज 1 and 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements. How many of the above reason for the emphasized size of एलिफेंटाइज साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। साइज़ की कॉन्स्टिट्यूशन का बल्किनेस होने का रीज़न क्या क्या है, मतलब इतना बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रीज़न क्या है बड़ा होने का? पहला, इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, करेक्ट। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, इट्स ऑल्सो करेक्ट। टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। कैटरिंग ऑफ द नीड ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन इन द कंट्री, पॉपुलेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली 2, विच इज ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, हाउ मेनी ऑफ द अबव एलिमेंट्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ basic structure of the Indian Constitution laid down by various court judgment, okay. So first statement is secular character of constitution, correct statement. Separation of power between legislative and executive, correct statement. Effective access to justice, ये भी सही है. writ jurisdiction of the supreme court, ये भी सही है. but socialist state नहीं होता है. so answer for this question is only 4 is the correct statement. so option B is the correct answer for this question, okay. next question is, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, with reference to the article 12 of the Indian Constitution, terms state include how many of the above, okay. इसमें से आर्टिकल 12 में स्टेट के रिगार्डिंग कौन कौन सा इंक्लूड है? फर्स्ट है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये तो है। यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी है। म्यूनसिपैलिटी ऑफ पंचायत, ये भी है। अथॉरिटी ऑफ LIC एंड ONGC, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विच इज़ ऑल ऑफ द above आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर हम बात करते हैं, कल किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि नेक्स्ट हमें शेड्यूल बता दीजिए मैम, ठीक है। तो शेड्यूल ये है कि डेली 50 क्वेश्चन होगा, ओके। और आज हुआ था पहला टेस्ट जो था पॉलिटी का फुल लेंथ का, उसमें से फर्स्ट पार्ट कल हुआ था और आज हुआ था इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट कल क्या होगा? नेक्स्ट पॉलिटी का ही सेकेंड टेस्ट है, तो उसका 50 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगा. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.